Assalamu alaikum. Welcome back in our online teaching learning session. Once again, after a gap of few weeks, I am back in front of you to proceed the same chapter in physics. As you know, we are learning electrostatics. And in the previous lectures, we have seen the Gauss law and its applications in electrostatics. Now we shall see here article number 8.4. To find the electric potential due to a point charge. प्यारे बच्चों, आज का हमारा आर्टिकल है नुक्ती बरखी बार की वजह से पैदा बरखी ख्वाह के लिए मसावत हासिल करना। मैं उर्दू में भी इधर तहरीर कर देता हूं। नुक्ती बरखी बार की वजह से पैदा बरखी ख्वाह के लिए मसावत हासिल करना। तो इसके लिए हम पहले के जो आर्टिकल्स हैं, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन हमने मालूम किए थे, उसी नहज पर आज भी हम इसको सीखने की कोशिश करेंगे। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट with the previous background itself. So we shall find the expression for electric potential due to a point charge. So we have to consider certain things like this. Let us consider a plus Q charge. It is situated, suppose, at point O, and we are interested to find this electric potential at any point, suppose A, which is situated at a distance r from this point O. And now consider, if suppose we are finding electric potential at this particular point A, then what is electric potential? It is the amount of work done to move a unit positive charge from infinity to a given point. So hereby we have to, as we know that very well, that the work done is independent of the path. Therefore, let us choose the path along this line up to infinity, and let us consider any point m in between this path. In between this path, that is, the path is here like this up to infinity, and the point A is here, and suppose this M is situated at a distance x, means distance OM is equal to x, suppose. And another point, consider N. Initially, to find the electric potential at point A, let us consider, initially we are considering the infinitely small distance or displacement dx. Let this plus Q charge is displaced between m to n. The displacement is, suppose, dx initially. So what will be the work done? The work done will be d omega, isn't it? And as you know, the electrostatic force at this particular point M is given by F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q upon x square. This is the electrostatic force at this particular point M, if it is situated at a distance x. So if
we consider this as a electrostatic force, then what will be the work done? Really small. Work done, this d omega is nothing but minus f into dx, where this negative sign indicates that the displacement is away from this point O, or it is opposite to the force. The displacement has been done opposite to the force. ये indicate करता है negative sign. So यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो छोटा सा काम, small work done to move the unit positive charge from point M to N with a displacement dx is given by d omega, which can be written as minus f into dx, or by putting this value of f we can write d omega as minus 1 by 4 pi epsilon naught into q upon x square dx. This is f into dx. So this is the small work done to move the charge from M to N with a displacement dx. Now, our interest is to find the potential at this particular point A. So, definitely the plus Q charge will be brought from infinity to this point A. So, for that we have to do the total work. So, the total work done W is nothing but the integration of dW, the integration of this small work between the limits infinity to r, because this displacement is nothing but r. Therefore, I am choosing the limits infinity to r. So, let us put values. So, W means the total work done is equal to, because why we are finding the total work done here? Because the definition of potential itself is like that. Potential, what is potential? We are interested to find the potential at point A. And what is potential? It is the amount of work done to move the unit positive charge from infinity to that given point A. That's why I am finding work done, total work done between the limits infinity to r. So let us put the value of d omega here. See here, d omega we have brought, that is integration infinity to r minus 1 by 4 pi epsilon naught into q upon x square dx. So this is the total work done to bring the unit positive charge from infinity to that point A. So let us take the common things outside the integration. So W will be equal to this minus 1 by 4 pi epsilon naught, and Q also, that is common, that is outside, and let us take the integration between the limits infinity to r of 1 upon x square dx. 1 upon x square into dx. So what happens here? अब हमें मालूम करना है इंटीग्रेशन इसका, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो सकता है? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, W is equal to minus Q upon 4 pi epsilon naught into integration infinity to r x raised to minus 2 dx. इसको ऊपर ले लिया मैंने. अब देखिए बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ x raised to minus 2 क्या होता है? x raised to minus 2 plus 1 upon 1. So that we have to take here, and the integration will now become minus q upon 4 pi epsilon naught into, इसका इंटीग्रेशन लेंगे हम माइनस x 1 upon x dx. बिटवीन द लिमिट्स है, इसलिए इसको रखेंगे इन्फिनिटी टू r. तो इस तरह हमने इंटीग्रेशन मालूम किया. नाउ वी शैल सी हियर, ये माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहां पर एक्सेस टू माइनस 2 है, ये माइनस साइन ले लिया मैंने, ये माइनस और ये माइनस प्लस 2 हो जाएगा. और क्या रहेंगे फिर? अब हम इसको इसके लिमिट्स में रखेंगे. लेट अस सी हियर, W इज इक्वल टू
Q बाय 4πε0। एक बार ये लिमिट लेंगे 1/r, दूसरे बार ये लिमिट लेंगे 1/∞ हो जाएगा। और बच्चों आपको मालूम है 1/∞ की वैल्यू कितनी होती है? 0। Therefore, क्योंकि 1/∞ इज इक्वल टू 0, इसलिए ये क्या हो जाएगा? W इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू ये Q है अपॉन ये R। सो दिस इज द वर्क डन। तो ऑलरेडी मैंने आपको कहा था कि हम वर्क डन मालूम कर रहे हैं। एक्चुअली क्यों मालूम कर रहे हैं? क्योंकि वर्क डन इज नथिंग बट the amount of work done to move the unit positive charge from infinity to a given point is nothing but potential। तो हम क्या मालूम कर रहे थे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की इक्वेशन मालूम कर रहे थे, इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं V इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R। ये हो गई एक्सप्रेशन किसकी? पोटेंशियल के लिए। यानी उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स इस पर गौर कर सकते हैं। हम मालूम कर रहे थे किसी नुक्ती बरखी बार की वजह से पैदा बरखी ख्वा के लिए मसावत। ठीक है, देखो बच्चों, सबसे पहले हमने क्या किया? हमने कंसिडर किया, फर्ज कीजिए कि वो नुक्ती बार प्लस क्यू चार्ज जो है, नुक्ती बरखी बार प्लस क्यू, इसको पॉइंट ओ पर रखा, उसका मुकाम ये है, इट इज सिचुएटेड हियर। अब एक नुक्ता ए कंसिडर कीजिए इस लाइन पर, जिस पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब नुक्ती बरखी बार का ख्वा मालूम करना है। नुक्ती बरखी बार की वजह से पैदा ख्वा के लिए हमको वैल्यू क्या आती है वो मालूम करना है, जो कि आर फासले पर है। कहां से? ओ से। नुक्ता ओ ये मुकाम से, ये पॉइंट ए का डिस्टेंस कितना है? आर है। अब हम ये कंसिडर करते हैं कि डायरेक्ट हम एक्सप्रेशन मालूम करने के बजाय उसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि ये बरखी ख्वा के लिए मसावत मतलब क्या है, इसकी तारीफ क्या है। इसकी तारीफ ये है कि किसी नुक्ती बरखी बार को लामुतना ही फासले से किसी खास मुकाम तक लाने के लिए किया गया काम, इसको कहते हैं बरखी ख्वा। यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो अगर हम किसी प्लस क्यू चार्ज को लामुतना ही फासले से एक मुकाम ए तक लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस दौरान फर्ज कीजिए बीच में एक नुक्ता एम है और यम और एक दूसरा नुक्ता एन है, और हम एक प्लस क्यू चार्ज को छोटा सा फासला तय करा के देखते हैं। एम से एन का फासला तय कराते हैं, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं अंग्रेजी में, dx है। और अब फर्ज कीजिए ये जो मुकाम है एम, ये नुक्ता एम, वो इनिशियली जो मुकाम हमने सपोज किए हैं ओ, वो x फासले पर है। तो फिर हम पहले एक छोटा सा किया गया काम मालूम कर लेते हैं। यम से यन को मूव करने के लिए इस एक नुक्ती बरखी बार को किया गया काम कितना आता है, इसको हम निकालते हैं। तो हमने देखा कि नुक्ता एम पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, बरखी कुव्वत है, वो कितने है? F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q अपॉन एक्स स्क्वायर। ये तो हमने कूलम्स लॉ के हिसाब से 11th स्टैंडर्ड में सीखा है कि किसी दो मुकाम पर Q1 Q2 सिचुएटेड है तो उनके दरमियान का कुव्वत कशिश या कुव्वत दिफा, बरखी कुव्वत कशिश, वो कैसे मालूम करते हैं? हमने कूलम लॉ से सीखा था ये। अब हम देखते हैं कि अगर ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है dx, तो फिर उसके लिए किया गया छोटा सा काम कितना होगा? काम की डेफिनेशन है कि ये हासिल ज़रब होता है किसका? तयशुदा फासला कुव्वत का हासिल ज़रब। तो यहां लिखा मैंने माइनस एफ डी एक्स। ये माइनस क्यों लिखा है? ये मनफी साइन इंडिकेट करती है कि ये जो किया गया काम है ये अपोजिट डायरेक्शन में है, ये डिस्प्लेसमेंट जो है अपोजिट डायरेक्शन में है इसके कुव्वत के, तो इस तरह नेगेटिव साइन का इंडिकेशन है। तो छोटा सा काम जो किया गया है वो कितना है? -1/4πε0 इंटू Q अपॉन वो जो फासला x है इसलिए x स्क्वायर dx। अब आते हैं इधर, अब हमको टोटल वर्क मालूम करना है। क्यों? कि हम उस नुक्ती बरखी बार को
वहां से इन्फिनिटी लामुतना ही फासले से नुक्ता ए पर लाने के लिए किया गया काम, दरकार काम मालूम कर रहे हैं, उसको कहते हैं W बिटवीन द लिमिट्स इन्फिनिटी टू आर। इन्फिनिटी से आर तक छोटे से काम को अगर हम इंटीग्रेट कर लेंगे तो हमको W मालूम हो जाएगा, इसलिए W मसावी है इन्फिनिटी टू आर। हमने ये dW की वैल्यू जो मालूम की है यहां पर माइनस क्यू बटे 4πε0 इंटू इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर, ये देखा क्यू बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको रखा, फिर ये क्यू और ये 1/4πε0 इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया गया है। क्यों? क्योंकि ये कॉमन है, इसका इंटीग्रेशन नहीं मालूम करते, इसलिए इंटीग्रेशन से बाहर लेते हुए जो कुछ रह गया उसको इंटीग्रेशन के अंदर रखा, 1/x² dx ये है अंदर। तो फिर 1/x² को कैसे लिख सकते हैं? x⁻² ऊपर लेके लिख सकते हैं, ऐसा लिखा है। ठीक है, उसके बाद के स्टेप में क्या किया? W मसावी है माइनस क्यू बटे 4πε0, ये मनफी, इसको हमने इंटीग्रेशन जो किया x⁻² 1/x इस तरह लेकर किया इसके लिमिट्स में, तो फिर 1/x के लिमिट्स रखे 1/r माइनस 1/∞, पहले अपर लिमिट लिया उसके बाद लोअर लिमिट लिया, तो ये 1/∞ की वैल्यू 0 होती है, वो 0 हो गई, तो फिर जो बाकी रह गया उसको यहां लिख दिया W मसावी है 1/4πε0 इंटू Q/r। इसी को कहते हैं, ये किया गया काम जो है ये क्या है? ये है नुक्ती बरखी बार की वजह से पैदा बरखी ख्वाह। तो यहां से यहां तक बस कुछ स्टेप्स है, ये इक्वेशन एक छोटी सी फिगर है, फिगर को मद्देनजर रखते हुए हमको ये एक्सप्लेन करना है। बच्चों और भी एक चीज आपको बताना है यहां पर कि इफ द चार्ज इज प्लस क्यू देन द सी हियर लेट मी ड्रॉ अ ग्राफ एंड टेल यू कि ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से जो प्रोड्यूस होता है वो पॉजिटिव पोटेंशियल होता है। हमने यहां पर प्लस क्यू चार्ज लिया है, इसके लिए प्लस क्यू चार्ज से पैदा होने वाला पोटेंशियल कैसा होगा? पॉजिटिव पोटेंशियल होगा। एंड ये वी कैन से हियर प्लस क्यू चार्ज से पैदा होने वाला पोटेंशियल कैसा होता है? पॉजिटिव पोटेंशियल होता है। और माइनस क्यू चार्ज से पैदा पोटेंशियल कैसा होता है? नेगेटिव पोटेंशियल होता है। ये भी बात आपको याद रखना है। यहां पर हमने प्लस क्यू चार्ज लिया है, इसलिए ये पोटेंशियल की वैल्यू जो आई है वो कैसी है? पॉजिटिव है। दूसरी चीज आपको ये बताना है कि इफ यू प्लॉट अ ग्राफ, अगर हमें ग्राफ y एक्सिस और x एक्सिस के बीच में डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये लेके y एक्सिस पर अगर हम देखें तो ये ग्राफ बनता है इस तरह। सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है, इसको मैं 1/r से जाहिर कर रहा हूं, और दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है 1/r² से जाहिर कर रहा हूं। तो अगर दोनों इस तरह के ग्राफ आते हैं तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं इस ग्राफ के जरिए? ये जो मुनहनी खत हैं, खतूत हैं, इनसे ये जाहिर होता है कि देयर इज अ सिमेट्री, स्फेरिकल सिमेट्री between the two, that is between the displacement and electric field graph and displacement and electric potential graph, there is a spherical symmetry। तो इसके बाद हम ये देखेंगे कि इस पर किस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खैर, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर ये आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, ये आपको पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसकी प्रैक्टिस भी कीजिए। एंड इफ यू आर हैविंग एनी डिफिकल्टी, आप डाल सकते हैं इस पर क्वेश्चन, रनिंग में हम इसको ट्राई करेंगे सॉल्व करने की। देखिए, अब मैं यहां पर जो कुछ हमने पढ़ा है इस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आइए मिलकर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं कि इस कंसेप्ट पर किस तरह के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। ये प्रॉब्लम इस तरह का है एक कि
Let me read that problem. A wire is bent in a circle of radius 10 centimeter. A wire is bent in a circle of radius 10 centimeter. It is given a charge of 250 microcoulomb. It is given a charge of 250 microcoulomb, which spreads on it uniformly. Which spreads on it uniformly. What is the electric potential at the center? What is the electric potential at the center? देखिए एक सिंपल सा प्रॉब्लम है बच्चों, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की मसावत को हासिल किया है, इसलिए ये प्रॉब्लम इस सिचुएशन पर सूटेबल है। क्या लिखा है इसमें, उर्दू मीडियम के स्टूडेंट देखिए, अ वायर इज बेंट इन अ सर्कल। एक वायर है जो एक सर्कल में इस तरह बेंट किया हुआ है। ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, इसका रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर है। इट इज गिवन अ चार्ज ऑफ 250 माइक्रोकूलम। एक 250 माइक्रोकूलम का बरकी बार इस पर स्प्रेड किया हुआ है, फैलाया हुआ है, इसको सिखाया गया है 250 माइक्रोकूलम के चार्ज से यूनिफॉर्मली यकसा बरखाया गया है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर? ये सेंटर ओ पर इसका बरखी ख्वा कितना होगा ये पूछा है। तो जैसे हमने ट्रेडिशन में हमने देखे कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब हम शुरू करते हैं सॉल्यूशन इसका, तो हम डेटा देखते हैं कि गिवन डेटा क्या है, दिया हुआ क्या है। उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम देखेंगे कि यहां रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए बच्चों, दैट इज 10 इंटू 10⁻² मीटर्स। ये मतलब ये 10⁻1 है, तो ये 10⁻², ये +1 मतलब क्या हो गया 10⁻1 मीटर, ये दिया हुआ है। दूसरी चीज इसमें क्या दी हुई है, इसमें दी हुई है चार्ज इज 250 माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6 कूलम। 250 माइक्रो कूलम का चार्ज से इसको बरखाया गया है और पूछ रहा है कि इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। बच्चों बहुत सिंपल है, अभी आपने देखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की इक्वेशन क्या आई है, 1/4πε0 इंटू क्यू। इस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, V इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर। रखेंगे इसकी वैल्यूज को। देखिए ये जो है 1/4πε0 ये कांस्टेंट है, जिसको हमने देखा था कूलम्स लॉ को पढ़ते वक्त। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10⁹ इतनी होती है। क्यू की वैल्यू कितनी है बच्चों, 250 माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6 कूलम। और अभी अभी मैंने आर की वैल्यू बताया आपको 10⁻1, जैसे कि हमने इसको 10 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में हमने कन्वर्ट करके लिया, इसलिए 10⁻1। देख रहे हैं आप लोग सब क्लियर। नाउ वी शैल सॉल्व इट। V इज इक्वल टू, देखिए ये 10⁻1 है, ये ऊपर जाके 10⁻+1 हो जाएगा, तो ये 10⁻10 हो जाएगा। और अब क्या है, ये 9 इंटू 250, 9 0 0, 9 5 45, 5 हासिल के रह गए 4, 9 2 18 +4 22।
ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन आ गया 2250 और ये है 10 टू द पावर, ये ऊपर आके 10 हो गया था, 10 में से ये 6 चले गया तो 10 टू द पावर 4। या और उसको अगर आप देखेंगे सिंप्लीफाई करना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है V इज इक्वल टू, ये पॉइंट लगाएंगे 1 2 3 के बाद पॉइंट लगाएंगे यहां पर, ये 2.250 इंटू 10⁻², ये 4 है और उसमें ऐड कीजिए 3 10 टू द पावर 7 और ये पोटेंशियल है इसलिए इसको क्या लिखेंगे वोल्ट। इन दिस वे वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। मींस व्हाट वाज द प्रॉब्लम, हाउ टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर of a wire which is bent between the radius 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर के रेडियस के अंदर उस वायर को बेंड कर दिया गया और पूछ रहा है कि इस पर 250 माइक्रोकूलम चार्ज को स्प्रेड आउट किया गया है यूनिफॉर्मली। तो ठीक है, उस चार्ज को अगर हम यूनिफॉर्मली इस पर स्प्रेड करते हैं और सेंटर में पोटेंशियल मालूम करना है बाय दिस डेरिवेशन कि किसी नुक्ती बरखी बार की वजह से पैदा बरखी खौ के लिए मसावत क्या थी, ये देखा हमने V मसावी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, ये एक्सप्रेशन आई थी। मैंने क्या किया, सिंपल पहले तो इसमें जो गिवन डेटा है उसको रखा, स्मॉल r की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू सेंटीमीटर में थी, मीटर में कन्वर्ट किया और उसके बाद माइक्रो कूलम में दिया था, इसको कूलम में लिखा, डायरेक्ट फॉर्मूले का इस्तेमाल किया और एक सिंपल सी चीज के फॉर्मूले में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखा मैंने 9 × 10⁹। बच्चों ये हमने कूलम्स लॉ पढ़ते वक्त सीखे हैं कि ये एक कांस्टेंट होता है जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद वो दो पॉइंट के दरमियान का फोर्स उतना न्यूटन है ये मालूम होता है। तो ये हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, इसको रखा और सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ये चीज, ये वैल्यू आई। बच्चों अपने पास और 10 मिनट्स है, इसलिए वन मोर प्रॉब्लम और एक दूसरा प्रॉब्लम हम यहां पर देखेंगे। तो मैं अगर इस प्रॉब्लम को आपने नोट कर लिया है तो मैं इसको यहां से हटा देता हूं। ओके, यस, समझ लिया इसको। शेख शबिस्ता अनम, कोई प्रॉब्लम? इस प्रॉब्लम को समझने में कोई प्रॉब्लम है आपको? ओके, किसी ने कहा ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। देखो बच्चों दूसरा प्रॉब्लम कैसा है, पहले मैं इसको लिख देता हूं बोर्ड पर। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि अगर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द 2 पॉइंट्स मालूम ही है तो फिर हम, जैसे फॉर एग्जांपल if 120 joule of work is done in carrying a charge of 6 coulomb, if 120 joule work done in carrying a charge of 6 coulomb, याद रखिए यहां कूलम है, माइक्रो कूलम नहीं है। From a place where the potential is 10 volt, from a place where the potential is 10 volt, एक पॉइंट का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, वहां से टू अनदर प्लेस वेयर द पोटेंशियल इज V, to another place where the potential is V, then find the value of V. Then find the value of V. बच्चों ये एक सिंपल सा प्रॉब्लम अपने सामने है, इसको पहले समझने की कोशिश करेंगे। दो पॉइंट है, सपोज A और दूसरा पॉइंट B, A एंड B। बच्चों ये बताया गया है
कि इस पॉइंट ए पर पोटेंशियल कितना है, 10 वोल्ट है, और दूसरे पॉइंट बी पर पोटेंशियल मालूम करना है। इफ 120 जूल वर्क इज डन इन कैरिंग अ चार्ज ऑफ 6 कूलम। देखिए, एक 6 कूलम चार्ज है जिसको हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ला रहे हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ला रहे हैं। उस पे का चार्ज कितना है, 6 कूलम है। फ्रॉम अ प्लेस वेयर द पोटेंशियल इज 10 वोल्ट, सपोज यहां का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, टू अनदर प्लेस वेयर द पोटेंशियल इज V, दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल V है, अपन इसको A बोलते हैं, तो पोटेंशियल एट P दिस इज VA and the potential at B is VP. Suppose to another place where the potential is V, means यहां का पोटेंशियल अगर V है B पॉइंट का, then find the value of V. तो V मालूम करना है। तो बच्चों सिंपल सा एक फार्मूला है, दैट इज सॉल्यूशन। देखिए इसका, वैसे तो मैं आपको जनरली जैसे बताया था कि गिवन डेटा क्या है, देखिए हमें यहां जो कुछ दिया है वो चार्ज दिया है दैट इज 6 कूलम, और दूसरा दिया है कि 120 जूल वर्क इज डन, मतलब वर्क डन टू मूव अ चार्ज बिटवीन ए टू बी, ये 120 जूल है, ये ऑलरेडी दिया चुका है, ये गिवन डेटा है। हमको मालूम करना है V का पोटेंशियल, मतलब एक पॉइंट B पर का पोटेंशियल कितना होगा, मतलब वैल्यू ऑफ V। तो हम इस फार्मूले को टोटल में यूज करेंगे, VB माइनस VA मसावी है वर्क डन बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B, WAB डिवाइडेड बाय दैट इज चार्ज Q। सो लेट अस पुट हियर द वैल्यूज। VB अपने को मालूम नहीं है, इसलिए उसकी वैल्यू मालूम करना है V। VA अपने को मालूम है दैट इज 10 वोल्ट। WAB means work done to move the charge from A to B, it is given, which is 120 joule divided by Q. Q is the charge which is 6. तो 6 2s are 12, मतलब ये आ गया 20, मतलब V is equal to this 20 and this is minus 10 is here, उधर जाके प्लस 10 हो जाएगा। सो V is equal to 30 वोल्ट। मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट पर का पोटेंशियल कितना होगा, 30 वोल्ट होगा। अंडरस्टूड, समझ गए उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स, हैव यू गॉट इट? देखिए फिर एक बार उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा रिपीट करके बता रहा हूं। अगर 120 जूल काम, डायरेक्ट मैसेज भेज रही हैं सैयद आलिया, शी वांट टू अंडरस्टैंड इट वंस अगेन, ओके। अगर 120 जूल ये किया गया काम है दो नुकात के दरमियान का, मतलब किसी बरखी बार को, नुक्ती बरखी बार को इस मुकाम से इस मुकाम तक लाने के लिए किया गया काम WAB, वो दिया हुआ है 120 जूल, और पूछ रहा है कि अगर एक नुक्ते का खवा 10 वोल्ट है तो दूसरे नुक्ते का खवा V है, तब V की कीमत मालूम कीजिए। तो हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। पहले तो देखते हैं कि दिया हुआ क्या है। दिया हुआ है बरखी बार 6 कूलम, हाँ वो भी दिया हुआ है। वो जो चार्ज है बरखी बार है वो कितने का है, 6 कूलम का है। तो ठीक है, Q इज इक्वल टू 6 कूलम, ये दिया हुआ है। और उस चार्ज को A से B तक लाने के लिए जो किया गया काम है, वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम A टू B और B टू A,